Hello everyone, good morning. This is Kiran Bagotra. Welcome to in our next lecture, Economic Importance of Bryophyte. I hope you all are safe at your home. So let's we discuss about in our previous lecture. In this previous lecture, we discuss about the sporophytic stage of Funaria. In this sporophytic stage, we discuss about this development of the sporophyte. The sporophyte are dependent on this gametophytic structure, and now on this female disc portion, the sporophyte are formation. There are main three part of consistent foot, seta, and capsule. Foot is a basal portion of this sporophyte, and the seta is an intermediate portion between the food and capsule, and they are the storage of food and nutrition and to provide a capsule. And the capsule, they are further divided into three portions: the apophysis, theca, and columella. In this, the apophysis and columella, they both are sterile portion, but the theca are a fertile portion because they are fertile portion because in this portion the spore sac are present. In this spore sac, the spore mother cells are producing, and they further a meiosis process and formation of tetrad spore. And after the formation of the spore, they descends to the capsule by the peristomal teeth, and the 16 peristomal teeth are present in this. So after the producing the spore, they are the dehiscence on the earth surface, and they are germinate. First of all, produce the protonema, and then the after the formation of the whole structure. So in this, the funerary life cycle complete. And now next, our today's topic, the economic importance of ब्रायोफाइट, कि जो भी ब्रायोफाइट है उसमें से उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है. The bryophyte, also called as a liliputation among the land plant, have a so their economic importance. कि ब्रायोफाइट है उसको कॉमनली लिल्यूपिटेंस भी कहते हैं, कि जो लैंड यानी कि जो सरफेस पर प्लांट होते हैं उसे लिल्यूपिटेंस कहते हैं. कि दिस इज अ वन ऑफ टाइप ऑफ द मोस्ट प्लांट और द वन टाइप ऑफ दिस ब्रायोफाइट. In modern age, these lilliputans have attracted the botanist, environment, horticulturist, pharmacist only because of their industrial economic values. Okay, in this time, the bryophyte are attracted to the botanists, environmental and horticulture and pharmacy because they have it means that the bryophyte have a industrial and economic importance so many, so they are to attracted to these peoples. फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रायोफाइटा एज अ सोर्स ऑफ फूड, के फूड के माध्यम में ब्रायोफाइटा है उसका बेनिफिट क्या है. तो ब्रायोफाइटा आर यूज एज अ ह्यूमन फूड, के जो ह्यूमन के फूड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ब्रायोफाइट है वो इम्पोर्टेंस है. Then a peat moss is used as the ferment food in China. Peat moss is a generally sphagnum. Okay, they are the one type of Bryophyta species. They are used in the ferment food in China. Okay, in this China, the hunger or starved condition in this the Bryophyte यानी कि sphagnum are used in this. So it is known as the ferment food because they are used in the starved condition. स्फेग्नम यानी कि पीट स्फेग्नम इज यूज एज द इंग्रेडिएंट द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, के ब्रेड की प्रिपरेशन में भी स्फेग्नम का यूज होता है. देन दे आर हावेवर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल यूजफुल टू मैन विच इज ब्रायोफाइट एज अ फूड सोर्स. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कि जैसे एनिमल और मैन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, वैसे ही ब्रायोफाइट है वो फूड के सोर्स से कनेक्टेड है. Most capsule of the Bryum and Polytrichum constitute of the chief diet of the Norwegian grouse chicken. कि जो नॉर्वेजियन ग्राउस चिकन है, नॉर्वेजियन ग्राउस चिक्स है, वो ब्रायम एंड पॉलीट्रिकम जो स्पीसीज है ब्रायोफाइट की, कि उसका जो अपर पोर्शन है कैप्सूल वाला पोर्शन, उसे वो डाइट में यूजफुल करते हैं. इट मीन्स कि दे आर एनिमल यूजफुल टू ब्रायोफाइट एज अ सोर्स ऑफ फूड.
The other example is the capsule of moorhen habitat. The mosses are the favorite food of the red grouse chicks. कि जो रेड ग्राउस चिक है वो भी कैप्सूल है उसका यूज़ फूड के प्रिपरेशन के लिए करते हैं. देन द अलास्कन reender grazes upon the polytrichum species Eleucominium turgidum and Hylocomium alaskonum beside the lichen and grazes in summer. In this summer they alexan are upon in this the species of the bryophyta and they are the beside into the lichen and grass in this summer season. You can see these in this figure. The bryum and polytrichum species are shown. In the winter they include the sphagnum imbritum and the dicarinum species is addition to above. के विंटर सीजन में स्पैगनम की ये स्पीसीज है वो डिस्कवर्ड यानी कि अराइज होती है कि दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द एनिमल्स एज अ फूड सोर्स. So the bryophyte are also useful for the human food and the animal food. Then the second use is the medicinal use. Some bryophyte have a medicinal property कि जो भी ब्रायोफाइट है उसमें से कितने सारी स्पीसीज है कि जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है यानी कि वो कोई भी मेडिसिनल के लिए यूजफुल होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केंसिया पोलीमोर्फा यूज टू क्योर ट्यूबरक्लोसिस एंड द लिवर डिजीज. इट मीन्स कि जो मार्केंसिया पोलीमोर्फा वाली स्पीसीज है वो ट्यूबरक्लोसिस और लिवर के डिजीज यानी कि लिवर के कोई भी इन्फेक्शन होते हैं और ट्यूबरक्लोसिस इट मीन्स कि दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूबर के ट्यूबर की ग्रोथ है उसको इनहिबिट करने में यूजफुल होती है. देन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द मार्केंसिया पोलीमोर्फा Markinsia stilata and Polytrichum communi have an anti-tumor property कि the extract it means कि जो भी प्लांट है उसका इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सब्सटेंस उसका सब्सटेंस है उसका इंग्रेडिएंट करके उसमें जो लिक्विड कंटेंट है उसको यूज़ करते हैं एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी में. इट मीन्स दे आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ दिस ट्यूमर. The decoction of the diet sphagnum is used to acute the hemorrhage and the eye disease. कि जो sphagnum है उसका डिकॉक्शन यानी कि वन टाइप ऑफ मेथड दे आर द गिवन आउट द एक्सट्रैक्ट बट दे आर इन रायड कंडीशन. कि जो स्फेगनम है उसके डायरेक्ट कंडीशन में जो डिकॉक्शन में से जो पाउडर यूज होता है उसका यूज़ कहाँ पे होता है तो कि एक्यूट हिमोमॉर्फिक. इट मीन्स द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द डैमेज ब्लड वेसल्स कि कोई भी वेसल्स है वो डैमेज हो जाती है तो उसमें से ब्लड का लॉस होने से प्रिवेंशन करता है. एंड द आई डिजीज़ के आई के कोई भी डिजीज़ है उसमें से भी उसका यूज़ होता है. देन द टी मेड ऑफ द पोलिट्रिकम कम्युनी हेल्प टू डिजोल्व द स्टोन ऑफ द किडनी एंड ग्लैड ब्लेडर के ग्लैड ब्लेडर और किडनी में जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें उसको प्रिवेंशन करके यानी कि उसको डिजोल्व करते हैं तो उसमें से पोलिट्रिकम कम्युनन स्पीसीज है वो यूजफुल होती है. देन द स्फैग्नम लीव्स विद द ग्रेजिस is used to ointment in the healing of the wound and cut. कि स्पेगनम का लीव्स और उसके जो ग्रेसेस है उसका यूज़ कहाँ यानी कि उसमें जो ऑयल ग्रेडियंट्स है उसका यूज़ कहाँ पे होता है तो कि ऑइनिमेंट. ऑइनिमेंट मीन्स कि दे आर द सम ऑयली सब्सटेंस दे आर रब्ड ऑन द स्किन एज अ मेडिकल पर्पस. कि कोई भी वाउंड यानी कि हीलिंग ऑफ वाउंड यानी कि कोई भी जल जाती है स्किन और कट हो जाती है तो वहाँ पे उसका ऑयल है वह लगा के उसको रबिंग करते हैं. द स्फेगनम प्लांट आर एंटीसेप्टिक कि जो स्फेगनम का प्लांट है वो प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी डिजीज होता है तो उसे वो प्रिवेंट करते हैं. देन दे प्रोसेस द एब्जॉर्प्टिव पाउडर एंड सो दे आर द यूज एज द एब्जॉर्बेंट बैंडेज इन द हॉस्पिटल. के हॉस्पिटल में उसका जो ड्रेसिंग करने में यूज़ होता है कॉटन तो वहाँ पे उसका पाउडर है वो एंटीसेप्टिक के लिए यूज़फुल होता है. थर्ड वन इज द एंटीबायोटिक एक्टिविटी. व्हाट इज द एंटीबायोटिक एक्टिविटी? एंटीबायोटिक एक्टिविटीज मीन्स कि द मेडिसिन दे आर द यूजफुल टू द ग्रोथ preventing the growth of the disease causes the microorganism so this is known as the
antibiotic. So some bryophyte have an antibiotical substance કે they are inhibit the growth of the microorganism. The aqueous extract of the Cordycephalium conicum is an antibiotical active. कि जो ब्रायोफाइट की स्पीसीज है कॉन्सेफलम कोनिक्यूम के उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो एंटीबायोटिक के लिए यूजफुल होता है. देन दिस स्पीसीज एंड द अनदर स्पीसीज इज अ ड्यूमोटिया हिर्सुटा टू बी एक्टिव अगेंस्ट द कैंडिडा अल्बिकन्स के जो कैंडिडा अल्बिकन्स के नाम की फंजा है तो उसके अगेंस्ट ये दोनों ब्रायोफाइट की स्पीसीज है उसका यूजफुल एंटीबायोटिक्स के लिए होता है. देन द स्फेग्नम Portosicens and the Sphagnum staticum inhibit the growth of the Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. कि जो ये स्पेग्नम की दो स्पीसीज है वो स्टेफाइलोकोकस और स्यूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ है उसे इनहिबिट करते हैं और जो फंगल इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट करते हैं. देन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पेग्नम स्पीसीज इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ द सैक्यूरानिड के ऑल्सो दे आर द inhibit the growth of this infection. Anomodon rostraceus and Orthotrichus rupestri to be antibiotical active against the Micrococcus flavus, Micrococcus rubens, Streptococcus pyogenes and the Candida albicans के ये जो सारे के सारी फंगल इन्फेक्शन है कि उसके प्रिवेंट में जो एनोडोना और आर्थोट्रिकम की स्पीसीज है उसको एंटीबायोटिक के लिए यूजफुल होती है. देन द नेक्स्ट वन इज अ इंडस्ट्रियल यूज के इन दिस इंडस्ट्रियल यूज दे आर ऑल्सो हेल्प इन टू द मेडअप ऑफ दिस सम एसिड एंड सम कंपोनेंट्स. स्फेग्नम एंड द अदर मोसिस आर द चीफ कंस्टिट्यूट ऑफ द पीट कि कोई भी ब्रायोफाइट है उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें कंसिस्ट्यूट में मेन यानी कि चीफ कंपोनेंट्स है. द पीट कंसिस्ट मेनली ऑफ द रिमेन ऑफ द स्फेग्नम. फॉर दिस रीजन दिस मोस इज ऑफन कॉल्ड द पीट मोस कि जो स्फेग्नम है उसमें पीट का फॉर्मेशन होता है. सो इन दिस रीजन द स्फेग्नम इट इज नोन एज द पीट मोस. तो व्हाट इज द पीट मोस? द स्फेग्नम ग्रो द luxuriant. Their basal portion are dry, thus there are a large amount of dead vegetable matter accumulated each year, gradually filling the pod and leg. Means the sphagnum grow luxury. कि sphagnum में उसका ग्रो है वो स्पीड में होता है. जब भी उसका ग्रो होता है तब क्या होता है कि बेजल पोर्शन यानी डाई कि उसका जो बेजल पोर्शन है कि वो लैंड यानी कि कोई भी पॉन्ड या लेक की वाटर के अपर सरफेस में होता है वो पोर्शन है वो डाई हो जाता है और इसकी वजह से उसको लार्ज अमाउंट ऑफ डेड वेजिटेबल मैटर एक्यूमेट ईच ईयर ग्रेजुअली एंड फिलिंग द पॉन्ड एंड लेक के जो पोर्शन है वो डाई हो जाता है तो वो सारा पोर्शन है वो कोई भी पॉन्ड और लेक है उसमें से डिपोजिट हो जाता है. तो दिस डिपोजिट इज कंप्रेस्ड and hardened by the weight of the fresh deposit from above in this course of time attain the considerable thickness. कि जो डिपोजिट कंपोनेंट्स होता है तो उसका जो मटेरियल है उसका वेट है वो एकदम हल्का सा वेट होता है तो वो पॉन्ड या लेक है उसकी सरफेस है उसमें वो पूरे की तरह फैल जाता है और स्प्रेड हो जाता है. द compactly partially decompose and carbonize the dead plant deposit are the called the पीट के जो पोर्शन है जो आखा लैंड और पॉन्ड यानी लेक में जो स्प्रेड हो जाता है वो कोई भी कार्बोनाइजिक डेड प्लांट है उसे डीकम्पोज कर देते हैं और सारे की सारी स्पीसीज है वो डीकम्पोज हो जाती है और जो लैंड पॉन्ड और लेक के ऊपर जो लेयर बन जाते हैं उससे इसलिए उसे हमें स्फेग्नम को पीट मॉस कहते हैं. पीट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल के अल्कोहल का फॉर्मेशन करने में पीट है वो यूजफुल होते हैं. तो हाउ टू यूज देयर इन द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कोहल? तो बाय द केमिकल ट्रीटमेंट द सेल्यूलोज इन अ पीट इज द ब्रोकन डाउन इनटू शुगर इन विच टू फॉर्मेंटेशन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. कि जो पीट के अंदर सेल्यूलोज का फॉर्मेशन होता है तो वो सेल्यूलोज में केमिकल प्रोसेस होती है और उस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं एंड फर्दर शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं उसमें से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं. देन द अमोनियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पीट. नाइट्रेट, ब्राउन राइस एंड टैनिन मटेरियल आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पीट के ऑल्सो पीट
पीट में से जो अमोनियम सल्फाइड केमिकल है, नाइट्रेट है, ड्राई है, टैनिन है, ये सभी मटेरियल है उसका फॉर्मेशन पीट में से ही करते हैं। देन द सम ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द पीट सच इज द पीट, टार, एमोनिया एंड पैराफिन आर यूज इन द इंडस्ट्रियल। कि जब भी ये कोई अल्कोहल है, कोई भी नाइट्रेट, सल्फाइड, ड्राई कि जिसका फॉर्मेशन करते हैं, जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलती है पीट में से, तो उसमें से एमोनिया और पैराफिन भी बाय प्रोडक्ट के लिए मिलते हैं और उसे हम यूज़फुल कर सकते हैं। देन द पेपर एंड आर्टिफिशियल वुड आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम द पीट। कि जो पेपर और आर्टिफिशियल वुड का फॉर्मेशन होता है वो भी पीट में से होता है। देन द वेरियस प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीट। दे आर द एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल फैटी एसिड, एस्टर, फ्लेवेनॉइड, ट्राइटरपेनॉइड, फिनोलिक एंड द अदर केमिकल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन दिस ब्रायोफाइट। इट मीन्स के ये सारे एसिड है वो ब्रायोफाइट है उसमें प्रेजेंट है। सो दे आर द यूजफुल इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। The next is a use in the horticulture. Horticulture means that they are the branch of the plant agriculture. In this they are dealing with the garden crops, generally fruit, vegetable and ornamental plant. They are grow in this region. So it is known as the horticulture. So the sphagnum and peat are a great use in the horticulture. कि उसमें उसका कई सारा यूज़ होता है। द पीट इज एडेड द हैवी सॉइल्स टू इम्प्रूव देयर टेक्सचर एज इट कीप देम द पोरस एंड टू प्रिवेंट द केकिंग व्हेन द एडेड टू ड्राई सैंडी सॉइल एंड इम्प्रूव देयर द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कि पीट है उसका यूज़ एग्रीकल्चर में कहाँ पे होता है, सॉरी हॉर्टिकल्चर में कहाँ पे होता है, तो जब भी कोई प्लांट है उसको हम ग्रो करते हैं तो कोई भी प्लांट की ग्रो करने में जो सॉइल है वो सॉइल में पीट को एडेड करते हैं। इसलिए क्या होता है कि पीट है वो कोई भी पॉन्ड यानी लेक के अपर सरफेस में थिकनिंग हो जाती है तो उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादातर है। तो सो इसलिए वो पीट है उसको कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं इन हॉर्टिकल्चर में तो उसमें सॉइल में पीट है उसको मिक्स करते हैं कि इसीलिए उसमें जो सॉइल है वो पोरस यानी कि टेक्सचर लाइक मिल जाती है और उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसका इम्प्रूवमेंट होता है। इट सर्व एज एन ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड द पीट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द ह्यूमस। के पीट का मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है कि ह्यूमस यानी कि जो सॉइल है उसका स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज करने में, और द ऑर्गेनिक मैन्यूर इट मीन्स कि दे आर ग्रो इन द एग्रीकल्चर soil. Dyed sphagnum are also used as the gardener mulches with help to retain the high soil acidity required by the certain decoration and the economical important plant। कि जो स्फेगनम है वो डायड स्फेगनम का पाउडर होता है उसका यूज़ भी गार्डन में सोइल की एसिडिटी है उसे लो कंटेंट में यूजफुल जाती है एंड ऑल्सो दे आर इम्पोर्टेंट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। देन द ब्रायोफाइट इज़ अ पैकिंग मटीरियल। कि ब्रायोफाइट का यूज़ है वो पैकिंग मटीरियल में भी किया जाता है बिकॉज वी ऑल्सो नोन एज कि द ब्रायोफाइटा हैव अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कि उसमें वाटर स्टोरेज करने की कैपेसिटी है सो इसका यूज़ है वो पैकेजिंग मटीरियल में भी होता है। डायड मोस आर यूज एज अ पैकेजिंग मटीरियल। कि जो डायड स्फेगनम यानी कि कोई भी मॉस है उसका यूज़ पैकिंग मटीरियल में होता है। कि दे आर द स्फेगनम एंड मॉस पीट to their ability to water holding tenkeslu and the re-moisturization and used as a packing material for the shipment of the live plant, cut flower, vegetable, fruit, bulbs and tubers, fish, egg and meat। कि कोई भी प्लांट्स के वो कोई भी लाइव प्लांट होगा, देन उसके कोई भी फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट वाला पोर्शन होगा, कोई भी फिश, एग के कोई भी मीट वाला पोर्शन होगा, तो उसे कोई भी बॉक्स में पैकेजिंग करके उसमें डायरेक्ट स्फेगनम का पाउडर है ऐड करते हैं कि इसलिए उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसका मॉइस्चर है वो इसमें से ये सारे पार्ट है उसको डैमेज करने से प्रिवेंट करते हैं। सो दे आर ऑल्सो यूज इन दिस पैकेजिंग मटीरियल। देन द बायोफाइट आर यूज इन द एक्सपेरिमेंटल बॉटनी। के कोई भी बॉटनी में जो एक्सपेरिमेंट प्रोसेस होती है कि कोई भी रिसर्च वर्क होते हैं उसमें भी बायोफाइट यूजफुल है। द लिवरवर्ट्स एंड द मॉस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉटनी रिसर्च टूल। के लिवरवर्ट और मॉस है उसका इम्पोर्टेंट रोल है रिसर्च करने में।
Then the mechanism of the sex determination in the plant was the first discovered in the liverwort स्फेरोकार्पस के जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है प्लांट में से उसका फर्स्ट डिस्कवर्ड है वो लिवरवॉट स्फेरोकार्पस स्पीसीज में हुआ था. एंड दे आर ऑल्सो हेल्प इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन द पोलिप्लॉइडी इन द लिवरवॉट के लिवरवॉट के अंदर जो पोलिप्लॉइडी प्रोसेस होती है कि उसको क्रोमोसोमल नंबर है वो एक्सचेंज करके जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करके कोई भी न्यू प्लांट है उसका डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें भी ब्रायोफाइट है वो लिवरवॉट है वो यूजफुल होता है. Then the next one is a pollution indicator. Pollution indicator means they are the indicate the temperature, color, odor, density. They are the points. They are useful in this. So the sphagnum can the absorb and store the metal from the atmosphere. के atmosphere में जो metals है उसको store और absorb और store करके रखते हैं sphagnum. So they are used in the atmospheric and aquatic pollution indicator and the mineralogical सर्वे के जो मिनरलॉजिकल यानी कि मिनरल्स और जो पॉल्यूशन में टेम्परेचर कलर ऑर्डर डेंसिटी है उसको सर्वे करने में स्फेग्नम है वो यूज़फुल होते हैं. देन देयर इज एड्स इन द सोइल कंजर्वेशन के सोइल का कंजर्वेशन करने में भी ब्रायोफाइट है वो यूज़फुल है कि द मोस्ट प्रिवेंट द शीट इरोजन ऑफ द सोइल के सोइल है उसको इरोजन करने में प्रिवेंट करते हैं. देन दिस थिक मोस कार्पेट सर्व एज द टू फोल्ड function. Firstly, it bears the impact of the falling the raindrop and secondly it hold much the water that falls के जहाँ पे ज़्यादातर वाटर फॉल्स आता है वहाँ पे पीट मॉस है वो स्प्रेड हो जाती है कि इसीलिए उसमें से कोई भी सॉइल है वो इरोजन नहीं होती है. Then the next is a box succession. Box succession means कि they are the like a formation of the pond ecosystem. कि the formation of the forest from the pond ecosystem it is called the box succession. Mosses play an important role in the box succession from the open water to climax forest के जो water है यानी कि open water है उसमें जो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो सारा मटेरियल है वो मोसिस का फैल जाता है और वो यूजफुल होते हैं. Then the peat moss from the thick mats on the bank of ponds, lakes and other shallow body of वाटर कि जहाँ पे ये टाइप के वाटर प्रेजेंट है वहाँ पीट मॉस है उसका फॉर्मेशन होता है. देन दिस मैट ओवर द वाटर सरफेस गिव द अपीयरेंस ऑफ द सॉलिड सॉइल. दिस एरिया इज कॉल्ड द क्विकिंग बॉक्स कि जो भी वाटर के पॉइंट्स है कि वहाँ पे जो पीट है वो मैट लाइक सरफेस हो जाती है कि वाटर के अपर सरफेस और दे आर द लाइक ऑफ द solid soil. So this area it is known as the quicking box and they are also known as the box succession. These thick moss mats form a suitable substratum for the germination of seed of the hydrophytic plant. They are bogs they are used in the hydrophytic plant. They are germinate to seed in the formation of a new hydrophytic plant. The mosses play a vital role in the changing of the landscape. Then the next is a role is a rock builder के certain mosses associate with the other aquatic plant in the play role in the rock builder के rock के formation में भी उसका formation होता है. This plant grow in the shallow water and lakes, stream and spring which containing the large amount of calcium carbonate के वहाँ पे उसमें calcium carbonate का formation ज़्यादातर होता है. Then the insoluble calcium carbonate precipitate on exposure forming a lime rocks deposit around this plant के उस plant है उसके around में calcium carbonate है उसको ज़्यादातर formation होता है. The rock deposit used as a building stone के कोई भी बड़ी building stone बनाने में उसका rock का use होता है. So in this lecture we discuss about के how bryophyte are used in the as a source of for the human and the for as well the animals. Then they are how to use in the medicinal property, then the antibacterial, anti-tumor, antimicrobial activity. Then the next one is a how to useful as the rock builders, then the box succession, then the other method the horticulture pollution indicator organic manure. Okay, in this there how to use. So in this lecture we discuss about the economic importance of this bryophyte and so in this our today's lecture we completed our
the Bryophyta units. Thank you.